Students, how are you? I hope you all are fine. Please take out your third edition New Oxford Primary Science book and open page number 2. Today we are going to start our first chapter, which is the human body, Insani Jism. Student, you must recall this. There are names for all the part of your body. जिस्म के हर हिस्से के नाम हैं. People look different from each other. लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं. All living things grow. हर जानदार चीज़ नशोनुमा करती है. Children grow into adults. बच्चे नशोनुमा पाकर बड़े हो जाते हैं. We need food to grow. हमें नशोनुमा पाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है. वी कैन मूव इन डिफरेंट वेज़. हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरकत कर सकते हैं. वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस. हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं. In this chapter, we will learn your body has many parts, bones, joints, muscles and organs. आपके जिस्म के बहुत से हिस्से हैं. हड्डियाँ, जोड़, पट्टे और अज़्व. All the parts of the body perform different jobs. जिस्म के हर हिस्सा अपना काम करता है. We have 5 sense organs with which experience the world around us. Eyes, ears, nose, tongue and skin. हमारे 5 senses हैं जिसके साथ हम अपने आसपास की दुनिया का तजर्बा करते हैं. आँखें, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द के थ्रू. Let's begin today's lesson. Human body varies in size and shape. इंसानी जिस्म मुख्तलिफ होता है जिसामत में और शक्ल में. People can be tall, short, weak और strong. लोग लंबे, छोटे, कमज़ोर और ताकतवर हो सकते हैं. But all human beings have similar body parts. लेकिन तमाम इंसानों के जिस्म के हिस्से एक जैसे होते हैं. Like we all have an eyes to see things or nose to breathe or hands to hold things. Bones, हड्डियाँ. The bones of your body make up your skeleton. आपके जिस्म की हड्डियों से ढांचा बनता है. A skeleton helps us to stand upright and gives shape to the body. ढांचा हमें सीधा खड़े होने में मदद करता है और जिस्म को शक्ल देता है. Every time we walk, sit in a chair or bend, we are using our bones. जब कभी हम चलते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, पाँव मोड़कर, तो हम अपनी हड्डियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. When we become an adult, we have 206 bones in our body. जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं. So students, you can see that this is skeleton. Let's study all bones names that exist in our body. Skull, खोपड़ी. Jawbone, जबड़े की हड्डी. Rib bone, पसलियों की हड्डी. Upper arm bone, ऊपरी बाजू की हड्डी. Lower arm bone, निचले बाजू की हड्डी. Spine, रीढ़ की हड्डी. Hip bone, कूल्हे की हड्डी. Finger bones, उंगली की हड्डी. Thigh bone, रान की हड्डी. Knees bone, घुटने की हड्डी. And toe bone, पैर की हड्डी. Student, do you remember men, women, boys and girls are called human being? आदमी, औरत, लड़के, लड़कियों को इंसान कहते हैं. All human beings have similar body part. तमाम इंसानों के जिस्म के हिस्से एक जैसे हैं. But we look
think and behave differently from each other. लेकिन हम सब मुख्तलिफ देखते हैं, सोचते हैं और बर्ताव करते हैं. So let's stop now. I hope this lecture will help you. We will do the rest of the chapter next time. Revise this lecture at your home. I will meet you next time. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Please take out your science book and open page number 2. Before started today's lesson, let's see what we had studied in our previous lecture. We studied that human body varies in size, shape, pupil can be tall, short, weak or strong. इंसानी जिस्म मुख्तलिफ होता है जिसामत में और शक्ल में. लोग छोटे, लंबे, कमज़ोर और ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन तमाम इंसानों के बॉडी पार्ट्स एक जैसे होते हैं. We also studied about the bones or names of bones. So let's move today's lecture. Students, please open page number 3. Muscles and joints. पट्टे और जोड़. So first of all, we will learn what is bones, what is muscles and what is joint. So student, these all are bones. Remember, we studied that bones of our body make up skeleton. स्केलेटन हमें सीधा खड़े होने में मदद करता है और ये हमारे जिस्म को शक्ल देता है. सो दिस इज़ मसल्स. हड्डियों के ऊपर जो गोश्त होता है उसे मसल्स कहते हैं. जॉइंट, जिस जगह से भी दो हड्डियां आपस में मिल रही होती हैं उसे क्या कहते हैं? जोड़. लाइक हमारी रिस्ट से, शोल्डर से, एल्बो से हम अपने पार्ट्स को बेंड कर सकते हैं, यानी कि मोड़ सकते हैं. बोन्स डू नॉट वर्क अलोन. हड्डियाँ अकेले काम नहीं करती. दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. ये जॉइंट्स और मसल्स की मदद से हरकत करती हैं. द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट. जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं वो जगह जॉइंट कहलाती है. Joint help us the skeleton to move. They allow us to walk, run, bend or lift things. Joint skeleton की हेल्प करता है मूव करने में. वो हमारी मदद करता है चलने में, भागने में और चीज़ें उठाने में. Organs of the body. Different parts of the body do different jobs. जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं. ईच जॉब इज़ डन बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट और ऑर्गन. हर काम एक ख़ास ऑर्गन से किया जाता है. सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन. इनमें से कुछ जिस्म के हिस्से अंदर होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग्स. ब्रेन, यू हैव अ ब्रेन. आपके पास दिमाग है. यू सी इट, यू यूज़ इट टू थिंक विद. आप इसे सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस. और ये आपके जिस्म को और एक्शंस को कंट्रोल करता है. इसकी शेप अखरोट जैसी होती है. यू हैव अ हार्ट. इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आपके पास दिल है. हमारा दिल ब्लड को पंप आउट कर रहा होता है, तो बेसिकली वो हमारे ब्लड को ऊपर और नीचे कर रहा होता है. तो ये ब्लड हमारी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेट कर रहा होता है. लंग्स, फेफड़े. यू हैव अ पेयर्स ऑफ लंग्स. आपके पास फेफड़ों की जोड़ी है. यू यूज़ देम टू ब्रीथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. आप इनको हवा को सांस के ज़रिए जिस्म के अंदर और बाहर ले जाने के लिए यूज़ करते हो. स्टमक,
You have a stomach. आपके पास पेट है. It helps you digest your food. ये खुराक को हजम करने में मदद करता है. So students, let's move to the other topic, which is sense organs. We have 5 senses. हमारे 5 हवास हैं. We use the sense organs to sense things around us. हम अपनी आसपास की दुनिया को समझने के लिए इन सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं. विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट. इन सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और चख सकते हैं. एंड फील ऑल द वंडरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड. और दुनिया की तमाम खूबसूरत चीज़ों को महसूस कर सकते हैं. So that's all students. I hope this lecture will help you. So students, I'm giving you this homework. Please do this homework on your book. We will do the rest of the chapter next time. I will meet you next time. Till then, Allah Hafiz.